Hi everyone, I'm Dr. Shweta and I welcome you to my YouTube channel Teaching Learning with Shweta. Today we're going to discuss parenting styles. Why are we discussing parenting styles today? Because number one, it's a very important topic taught in CDTL, which is a course, Child Development and Teaching Learning, a course taught in the B.Ed programs and integrated B.Ed programs, and also because it is very important for us as teachers to know that there is a strong relationship between parenting style and the academic achievement and other kinds of development of children. So as teachers we should know that there is a strong relationship. ये किसने कहा है? ये रिसर्चर्स ने कहा है. उनमें से एक बहुत फेमस रिसर्चर थी डायना बॉम्ब्रेंड, and the theory that we are going to discuss, the theory on parenting style that we are going to discuss was given by डायना बॉम्ब्रेंड. तो आज हम डायना बॉम्ब्रेंड की थ्योरी पढ़ेंगे जो पेरेंटिंग स्टाइल पर है. इन्होंने ये थ्योरी इन अराउंड 1960 में ये हमें दी थी थ्योरी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल? वेल, the way a parent deals with a child, interacts with the child, talks to a child, sets boundaries or rules for the child, sets expectations from the child, that is what forms the parenting style. और हम सब जानते हैं कि हर पेरेंट का स्टाइल ऑफ डीलिंग विद चिल्ड्रन अलग होता है. So every parent has a different way of dealing with children. Some parents are very strict, some parents are lenient, some parents have made clear rules in the house that ये काम नहीं होगा, ये काम ऐसे होगा. Some parents are very negligent, they are not bothered about their children, whatever the reasons may be. Some parents they pamper their children a lot. So we ourselves have observed so many different kinds of parents. Teachers तो PTMs में देखते ही हैं कि पेरेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. दे कम विद डिफरेंट इश्यूज, दे कम विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दे कम विद डिफरेंट सजेशंस, एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली. तो एज अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से एक पेरेंट अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा है, उसके लिए रूल्स बना रहा है, उसके लिए एक्सपेक्टेशंस सेट कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, उसको किस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहा है, ये उसकी पेरेंटिंग स्टाइल है. और इस पेरेंटिंग स्टाइल का असर पड़ता है कि वो बच्चे कैसे बनेंगे बड़े होकर, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा. क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे लर्निंग को. So a parenting style which comprises of many things such as how a parent interacts with the children, how a parent deals or takes decisions about their children, how they set boundaries, whether they are strict, whether they are lenient, whether they are negligent, all these things form the parenting style of parents. And these parenting style influence very strongly, the research suggests that they influence very strongly the emotional, social, cognitive development of children and hence affect their learning and educational achievements. So it is very important for us as teachers to know what kind of parenting styles exist so that we can actually understand students and their behavior and their academics and also assist them, talk to the parents, communicate with the parents wherever necessary or if there is a problem. So that is the reason as teachers we do have a lot of connections with understanding parenting styles. So so this theory given by Diana Bombrand, this is one of the most famous theories. She had conducted experiments. उन्होंने बहुत सारे experiments conduct करे थे, बहुत सारे interviews किए थे, observations किए थे. उसके बाद उन्होंने अपने observations और interview के बाद ये देखा, शुरू में उन्होंने ये देखा कि 3 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स थी. पेरेंटिंग स्टाइल हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, किस तरह से पेरेंट्स डील करते हैं अपने बच्चों के साथ. तो वो 3 तरह की थी, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन एंड अनइन्वॉल्व्ड. बाद में उन्होंने परमिसिव को भी ऐड किया था इस ग्रुप में. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज पेरेंटिंग स्टाइल्स आर. मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डायना बॉम्ब्रेंड केम इनटू कंक्लूजन दैट इन जनरल all the parents of the world, they have these 4 kinds of parenting styles. उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पेरेंटिंग स्टाइल्स लगभग 4 तरीके की होती हैं. तो ये कौन सी हैं? सबसे पहले आती हैं अथॉरिटेटिव,
उसके बाद है अथॉरिटेरियन, फिर है परमिसिव एंड देन अनइन्वॉल्व्ड। इसको समझने के पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये मैंने एरो में लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिनेस। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये दो वर्ड्स सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पेरेंटिंग स्टाइल को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिमांडिनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, व्हाट आर दीज टू वर्ड्स? एज द नेम सजेस्ट, डिमांडिनेस मतलब पेरेंट्स क्या डिमांड करते हैं अपने बच्चों से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो चाहते हैं अपने बच्चों से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो, क्या वो बहुत ज़्यादा हैं, क्या वो बहुत कम है, क्या वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, उनके रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वो रूल्स ब्रेक आपने किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, या फिर आपको ये काम बोला गया है तो आपको करना ही है। क्या वो इस तरह के हैं, इतने डिमांडिनेस उनमें इतनी ज़्यादा है, या फिर कोई रूल्स ही नहीं है घर में, जो करना है करो, तुम्हारे जो मन में आ रहा है तुम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं डांटूंगा। क्या डिमांडिनेस बिल्कुल है ही नहीं। सो दिस फैक्टर इज व्हाट वी रेफर टू एज डिमांडिनेस। देन ऑपोजिट टू दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस, ये वर्ड्स यूज़ किए हैं इन्होंने ये थ्योरी में। तो डिमांडिनेस हो गया एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स, रूल्स सेट बाय द पेरेंट्स, एंड रिस्पॉन्सिवनेस इसका उल्टा, मतलब पेरेंट कितना ध्यान रख रहा है बच्चे का, रिटर्न में कितना उसको कम्युनिकेशन दे रहा है, उसको कितना डेमोक्रेटिक है, वो कितना उसकी बात को समझ रहा है, कितना सुन रहा है। So this being responsive to the child, being open to the child, allowing communication, allowing interaction, being democratic, that is what responsiveness means here. कि क्या घर में environment ऐसा है, पेरेंट क्या बहुत रिस्पॉन्सिव है या फिर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। So these two things are associated with parenting styles, और इन्हीं के बेसिस पर चार तरह की कैटेगरीज निकल के आई हैं, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये दो चीज़ों, दो वर्ड्स को ध्यान में रखना। अब आप अगर बोर्ड की तरफ देखेंगे तो मैंने इस तरह से ये बनाया है। यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ डायग्राम इन बुक्स दैट डिस्कस पेरेंटिंग स्टाइल्स, and there are many other representations you would find, but I personally feel this representation is the best kind of representation for this theory. So as you can see this arrow, यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांडिनेस। इस पोर्शन में आ रहा है अथॉरिटेटिव, इस पोर्शन में आ रहा है अथॉरिटेरियन, इस पोर्शन में आ रहा है अनइन्वॉल्व्ड, इस पोर्शन में आ रहा है परमिसिव। अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे डिमांडिनेस हाई है, रिस्पॉन्सिवनेस हाई है क्योंकि यहाँ पे H लिखा है मैंने, और डिमांडिनेस भी हाई है, मतलब ये भी हाई है, ये भी हाई है। सो दिस पोर्शन, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, मीन्स दैट द पेरेंट्स आर हाईली रिस्पॉन्सिव एंड हाईली डिमांडिंग। दिस मीन्स दिस वन, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूंगी, एज वी गो अपवर्ड द रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीजेस एंड द डिमांडिंगनेस इज हाई ऑन दिस साइड, it is low on this side. The responsiveness is low on this side and high on this side. So if we only consider this portion, then this is high on responsiveness and high on demandingness. So what is this authoritative style of parenting? ये कौन सी ऐसी स्टाइल है जिसमें डिमांडिंगनेस भी हाई है और रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है, और इसका क्या मतलब है? अब हम इसको समझते हैं। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग वो स्टाइल होती है पेरेंटिंग की जिसमें पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, स्ट्रिक्ट इन द सेंस क्लियर रूल्स हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको घर वापस इस टाइम पे आना है, आपको इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, आपको इनडिसिप्लिन नहीं करना है, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। वो क्लियर है and they are aware and they are conscious of how their children are doing and what they are doing in life. They are very very conscious about it, but at the same time उनकी responsiveness भी high है, मतलब वो कम्युनिकेशन की चैनल्स भी ओपन रखते हैं, वो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, बच्चा वहाँ पे हर्ड फील करता है, द चाइल्ड फील्स हर्ड, उसके लिए सेट बाउंड्रीज हैं, डिमांडिंगनेस हाई है, रूल्स हैं घर में, क्लियर बाउंड्रीज हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट सुनेगा भी, पेरेंट कम्युनिकेट करेगा। तभी मैंने यहाँ लिखा है लेट्स डिस्कस,
ऐसा नहीं कि मैंने बस अनाउंस कर दिया कि दिस इज़ अ रूल, यू हैव टू फॉलो दिस एंड फिर मैं चली गई वहाँ से। मुझे कोई मतलब नहीं कि बच्चा परेशान हो रहा है नहीं हो रहा है, बट इस पेरेंटिंग स्टाइल में कम्युनिकेशन की चैनल ओपन होती है, ओपिनियंस लिए जाते हैं बच्चों के, उनकी प्रॉब्लम को, अगर बाउंड्रीज हैं, रूल्स हैं, तो रूल्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी है पेरेंट की, और पेरेंट इज ऑलवेज कॉन्शियस एंड available for the child. This kind of parenting style is authoritative parenting style and it's considered to be the best. इसके नाम से कोई लिंक नहीं है। authoritative जनरली हम लेमैन लैंग्वेज में एक नेगेटिव वर्ड, एक नेगेटिव टर्म से समझते हैं उसको, बट दिस इज नॉट नेगेटिव इन दिस थ्योरी, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल. So here in this part, if you see, the responsiveness is high, the demandingness is high, both are high. So high is a good पेरेंटिंग स्टाइल. तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट जो है वो बहुत वो डिमांडिंग भी है, उसकी रूल्स भी हैं, डिसिप्लिन भी एक्सपेक्ट करता है, बाउंड्रीज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अवेयर है, वो कॉन्शियस है, लेकिन एट द सेम टाइम ही और शी इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द चाइल्ड, is opening, is always keeping communication open, is always there to solve their problems, and this is the best kind of parenting style. Now इस थ्योरी में डायना बॉम्ब्रेन ऐसा कहती हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च शी केम टू दिस कंक्लूजन, कि जो इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स इस स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं लाइफ में, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो खुश रहते हैं, उनको ज़्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनके अटैचमेंट्स बहुत सिक्योर होते हैं, फ्यूचर में भी सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होती हैं. वो ज़्यादातर इस ग्रुप के बच्चे, they are not victims of abuse of any kind, of drug abuse or addictions of any kind, and there have been very few cases of suicides or emotional disturbance cases in this kind of in children belonging to this kind of parenting style. So this is considered to be the best kind of parenting style. Now we move on to the next one, which is authoritarian. अब आप देखोगे authoritarian यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे मतलब एक हाई है और एक लो है. हाई कौन सी चीज़ है, डिमांडिनेस, मतलब, और लो कौन सी चीज़ है, रिस्पॉन्सिवनेस. डिमांडिनेस हाई है, मतलब द पेरेंट हैज़ क्लियर रूल्स भी क्लियर हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस भी सेट हैं, इनडिसिप्लिन अलाउड नहीं है, लेकिन मतलब डिमांड्स बहुत सारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिवनेस इज लो. मतलब पेरेंट रूल्स बना के गायब, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है. पेरेंट्स आर नॉट गिविंग चांस फॉर द चाइल्ड टू कम्युनिकेट, they are not interacting much with the children, they are not concerned with the problems of children, they are not डेमोक्रेटिक, वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, बस रूल्स हैं तो रूल्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. So there are some kind of parents who are very high on demands, but they are not available to solve problems for their children. तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जिसमें डिमांडिंगनेस, पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें डिमांडिंगनेस हाई है और रिस्पॉन्सिवनेस लो है, वो होते हैं अथॉरिटेरियन. एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी गुड पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि डायना बॉम्ब्रेन ने ये अपनी रिसर्च में बताया है कि जो इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे होते हैं वो सिक्योर नहीं होते, उनको सोशल डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा नहीं होता, वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो बहुत रिबेलियस होते हैं, क्योंकि हमेशा एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उनके अंदर बहुत एग्रेशन होता है, बहुत गुस्सा होता है. सो दैट rebellious nature becomes a part of their personality and they keep exhibiting that throughout their life. सो यहाँ पे वो बच्चे डिप्रेस्ड भी देखे गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल के जो हैं वो डिप्रेशन में भी होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी उनको होती हैं, एंड जनरली दे हैव नॉट डन वेरी वेल academically also. And these kind of children, the ones who have very authoritarian parents, ये अपने पेरेंट्स पे से सपोर्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, and they always look outside someone else to provide them that love and warmth and guidance. तो इनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं इनके पेरेंट्स, जबकि प्रीवियस वाले में पेरेंट्स आर फ्रेंडली and yet strict and clear with the children. Here in this case they are strict, the parents are strict but are not helpful, they are not very concerned
for the emotional well-being of their children. So that style is the authoritarian style. Now we move on to the third kind of style, which is the permissive style. अब ये इस पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें क्या लो है, डिमांडिनेस लो है, तभी मैंने यहाँ एल लिखा है, और रिस्पॉन्सिवनेस हाई है. मतलब ये वाले पेरेंट्स जो हैं डिमांडिनेस इज लो, मीन्स उनके ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ही नहीं. आपको जो खाना है खाओ, आपको लेट आना है आओ, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बस खुश रहो, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग. मतलब वो रिस्पॉन्सिव बहुत है. दे पैम्पर देयर चिल्ड्रन, दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू पैम्पर एंड शावर लव एंड अफेक्शन, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन. तो डिमांडिनेस बहुत लो है, मतलब घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई है. मतलब वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो ओपन है, सपोर्टिव है, फ्रेंडली है, लेकिन पैम्पर कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं कि रूल्स भूल जा रहे हैं, डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. सो दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज कॉल्ड परमिसिव, एक्सट्रीमली परमिसिव. जो बच्चा चाहता है परमिट कर रहे हैं. सो दे आर नॉट नेग्लिजेंट पेरेंट्स, बिकॉज हैड दे बी नेग्लिजेंट तो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती. वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो इमोशनल वेलबींग का ध्यान रख रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, बहुत अफेक्शन शावर कर रहे हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहे हैं घर में. सो दीज पेरेंट्स आर नॉट नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप. सो हियर इन द अथॉरिटेटिव द पेरेंट्स वर they were very careful as well as they were responsive and concerned for their children. Here they were very strict. The parents were strict, but the parents were not concerned about the emotional well-being of the child. Here the parents are concerned about the emotional well-being of the child, but they are not setting any boundary. They are not making any rules. तो इस कैटेगरी में आने वाले जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल परमिसिव थी नेचर में, ऐसा देखा गया कि वो बड़े होकर भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं लीड कर पा रहे थे. दे पर्सनैलिटीज वे बिकमिंग लाइक दैट दे वर अनेबल टू कंप्लीट देयर टास्क्स ऑन टाइम. दे वर वेरी इनडिसिप्लिन्ड. वो रूल्स भी फॉलो करने में उनको प्रॉब्लम होती थी, डिसिप्लिन में रहने में प्रॉब्लम होती है. एंड दीज चिल्ड्रन आर वेरी ईगोसेंट्रिक. ईगोसेंट्रिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं when we were studying the Piaget's theory, that when you think only about yourself, you become very self-centered. ये छोटे बच्चों में देखा जाता है वैसे. तो since they have been pampered so much and they have not been controlled at all, they have not been barred from breaking rules, or no rules, no boundaries have been set for them. So these children, they become very egocentric. वो दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई कभी ना टोके. हम ऑफिस भी जाएं बड़े होकर तो हमें कोई कुछ ना कहे, हम स्कूल भी जाएं या हम कहीं किसी पार्टी में जाएं तो जो मन में आए मेरे, मैं वो करूँगी या वो करूँगा, क्योंकि मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका. सो दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी डेवलप्स इन चिल्ड्रन दैट आर परमिसिव, दैट बिलोंग टू दिस परमिसिव group. And it has also been seen that these people, since these children have been pampered a lot, therefore they also cannot become independent individuals. वो independently अपने functions ठीक से नहीं कर पाते हैं. And they also have problems in social relationships because of their egocentric nature. Because वो बहुत ज़्यादा खुद pampered रहे हैं, egocentric हैं, इस वजह से वो adjust नहीं कर पाते हैं. So this is also not a very good parenting style according to Diana Baumrind. We move on to the last, the fourth, which is the uninvolved या neglected parenting style. यहाँ पे आप देखो, इस पार्ट को अगर आप देखो तो दोनों लो है. डिमांडिनेस भी लो है, रिस्पॉन्सिवनेस भी लो है. मतलब ना तो पेरेंट ने क्लियर रूल्स बनाए हैं कोई, ना तो कोई एक्सपेक्टेशंस हैं. आप डिसिप्लिन पे बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के केस में, और रिस्पॉन्सिवनेस भी नहीं है. यहाँ पे परमिसिव में रूल्स तो नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत शावर कर रहे थे पेरेंट्स, इमोशनल सपोर्ट दे रहे थे यहाँ पे, और वो पैम्परिंग के एक्सटेंट तक था. बट यहाँ पे ना तो पेरेंट, यहाँ पे दोनों चीज़ें लो हैं. ना तो पेरेंट ध्यान दे रहा है बच्चे पे कि उसकी इमोशनल वेलबींग है कि नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है उसकी इमोशनल वेलबींग से, और ना ही वो कोई रूल सेट कर रहा है, ना ही कोई डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर रहा है. इसका मतलब द पेरेंट इज़ टोटली नेग्लिजेंट. द पेरेंट इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड और चिल्ड्रन. सो दिस काइंड ऑफ
parenting style is either known as negligent or uninvolved. Now this is the worst kind of parenting style according to Dinah Baumrind, because इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि शुरू से उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है, उनका किसी ने ध्यान नहीं दिया है. And these children are also poor in academics, क्योंकि शुरू से they are unable to score much in academics or perform well in academics because they have been neglected, and the parents have actually not paid much attention on their studies. So because of that neglect, they lack confidence, and this affects their social relationships also. They have a lot of emotional problems because they seek that support from the world which they don't get as they can get from their parents. एंड इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट उनको बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक यू नो दे कैन फॉल प्रे टू अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ और एडिक्शंस और sexual abuse and things like that, and also a lot of and also they are prone to depression and mental problems, and delinquency वाली जो cases हैं वो भी इस से बहुत निकल के आते हैं for parenting style. So these are the 4 kinds of parenting styles in general जो Dinah Baumrind हमें बताती हैं. So I'll just quickly revise. There are okay. We first need to know what responsiveness and demandiness mean. Demandiness means what as parents we expect from the children. क्या boundaries हम बना रहे हैं, क्या rules बना रहे हैं. हर घर में कुछ ना कुछ expectations होती हैं बच्चों से. खाने के बाद आप प्लेट उठा के सिंक में रखोगे, ये एक एग्जाम्पल है एक्सपेक्टेशन का. आप घर में आओगे तो शूज़ बाहर रख के आओगे, अनदर एक्सपेक्टेशन. आप पढ़ने बैठोगे एंड यू डेली फिनिश द होमवर्क. तो डिफरेंट घरों में डिफरेंट टाइप के एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांडिनेस. अगर बहुत ज़्यादा है ये रूल्स और पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज रूल्स, मीन्स डिमांडिनेस इज़ वेरी हाई. इसके और अगर नहीं है ऐसे रूल्स, पेरेंट को कोई मतलब ही नहीं है, इनडिसिप्लिन से पेरेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बच्चों के, तो दैट मीन्स डिमांडिनेस इज लो. देन रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ द पेरेंट इज गेटिंग बैक टू द चाइल्ड. पेरेंट का बच्चे के लिए कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, सिंपथी, एम्पथी, ये सब कैसा है. पेरेंट इज बॉदर्ड अबाउट द इमोशनल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड और नॉट. दैट कम्स अंडर रिस्पॉन्सिवनेस. इन दोनों कैटेगरीज, इन दोनों टर्म्स के बेसिस पे 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स थी हैं: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड. अथॉरिटेटिव में दोनों हाई है, डिमांडिनेस भी हाई है और रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है. मतलब द पेरेंट इज सेटिंग क्लियर रूल्स, स्ट्रिक्ट है पेरेंट, रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं, वो रूल्स फॉलो भी होने हैं, लेकिन पेरेंट का एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि हमें कोई मतलब ही नहीं है. Parent is sympathetic, empathetic towards the child, cares about the emotional well-being and happiness of the child, और उससे बैठ के बात करता है. डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, ओपन कम्युनिकेशन ओपन है, और अगर कोई रूल्स बनाए भी हैं तो उनके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करते हैं वो, कि क्यों हमें होमवर्क रोज़ करना है, बिकॉज दैट लीड्स टू कंसिस्टेंसी इन लर्निंग. इस तरह से जब हम एज पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ रूल्स बना के छोड़ ही नहीं देते हैं, बल्कि रूल्स हमने क्यों बनाए हैं, वो रूल्स फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, वो भी जब हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको लॉजिकली बता रहे हैं, उनको रीजनिंग के थ्रू बता रहे हैं, और वी आर देयर टू हेल्प द चिल्ड्रन if they face difficulty. That kind of parenting is authoritative parenting, and that is considered to be the best kind of parenting. The second is authoritarian, जहाँ पे डिमांडिंगनेस तो बहुत हाई है, रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन पेरेंट बहुत ज़्यादा इमोशंस का ध्यान नहीं रखता, हैप्पीनेस का ध्यान नहीं रखता. थर्ड वाला है हमारा परमिसिव, जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा है. मतलब इमोशंस का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रख लिया पेरेंट ने, खुशी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख लिया अपने बच्चों का, लेकिन रूल्स नहीं सेट किए, डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया. तो ये भी थोड़ा निग्लेक्ट होगा ये चाइल्ड एज फार एज होमवर्क इज़ कंसर्न, एज फार एज कंप्लीशन ऑफ टास्क इज कंसर्न, एज फार एज डिसिप्लिन इज कंसर्न. तो ऐसे ये वाली जो स्टाइल है वो परमिसिव स्टाइल होती है पेरेंटिंग की. द लास्ट वन इज़ निग्लेक्टेड और अनइन्वॉल्व्ड. इसमें दोनों चीज़ें लो हैं, रिस्पॉन्सिवनेस भी लो है और डिमांडिनेस भी लो है. मतलब ना तो घर में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और ना पेरेंट को इस बात से मतलब है कि बच्चा खुश है कि दुखी है कि क्या कर रहा है. द पेरेंट इज़ एब्सोल्युटली निग्लेक्टिंग द चाइल्ड और चिल्ड्रन. सो दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू डायना बॉमरिंड.
अथॉरिटेटिव इज़ द बेस्ट। अथॉरिटेटिव वाले जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो खुश होते हैं, उनमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ कम होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, वो डिसिप्लिन भी होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। यूजुअली देयर पर्सनैलिटी इज़ गुड। एंड द सेकेंड, द अथॉरिटेरियन, इसमें पेरेंट स्ट्रिक्ट है लेकिन एम्पैथेटिक नहीं है ज़्यादा, सो चिल्ड्रन टेंड टू बी ऑलवेज स्कैर्ड, नर्वस, उनको एंग्जाइटी इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, और वो बहुत अग्रेसिव भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, उनके अंदर जनरली ये रिबेलियस एटीट्यूड डेवलप होता है शुरू से ही, और लाइफ भर रहता है। सो दीज एंड ऑल्सो दीज दे हैव डिफिकल्टी विद सोशल रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ दिस अग्रेशन एंड वायलेंट बिहेवियर, एंड दे आर ऑल्सो प्रोन टू डिप्रेशन. Then permissive, these children, they don't have many emotional issues because the parent is always available, always loving them, caring for them. लेकिन इस ग्रुप में ये प्रॉब्लम होती है कि सिंस पेरेंट ने कभी डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दिया, होमवर्क नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, वो काम नहीं कर रहा है टाइम पे कोई बात नहीं, पैम्पर कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये इनडिसिप्लिन्ड इनकी पर्सनालिटी होती है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, ये अपने कामों को ठीक से पूरा नहीं कर पाते, और ये बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम, सोशल एडजस्टमेंट में इनको मुश्किल होती है क्योंकि घर पे सारी डिमांड्स इनकी पूरी हो रही हैं, तो उनको वही एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से हो जाती है कि सोसाइटी भी उनकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, जो नहीं होता है, और इस वजह से इनको इश्यूज़, डिप्रेशन, ये सब होता है. द लास्ट वन इज़ अनइन्वॉल्व निगलेक्टेड पेरेंटिंग स्टेज, जिसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया है. सो दे आर विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन. मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन रिपोर्टेड फॉर दिस ग्रुप ओनली, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म वेरी पुअरली इन एकेडमिक्स. डिसिप्लिन के इश्यूज़ होते हैं. सो ये सारी प्रॉब्लम्स इस ग्रुप के बच्चे फेस करते हैं. सो दीज आर दी 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स जो डायना बॉम्ब्रेन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें दी थी, और एज टीचर्स हमें ये पता होना चाहिए ये स्टाइल्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से, बिकॉज टीचर पेरेंट रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी शुड नो दैट दिस बोथ थिंग्स दे इफेक्ट एकेडमिक्स. तो अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल के इन्वायरमेंट से आया है, तो हम समझ पाएंगे उस बच्चे को अच्छे से, और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, और हमें पेरेंट को क्या मैसेज देना है, कैसे काउंसिल करना है. दिस इंफॉर्मेशन इज़ often very useful to us as teachers. So this was my discussion for on parenting styles. And if you like my videos and want more videos on topics like these, do like and subscribe my channel. Thank you.